Hello my dear students of standard 9th, welcome you all in today's online class. Dear students, it is time to learn physics. What chapter is going on, dear students? Chapter 5th, work, energy and power. This chapter is going on and we have started recently this chapter because we have completed the chapter that was going on, chapter 3. The name of the chapter is क्या नाम था चैप्टर का? Chapter name was gravitation. So dear students, we have done a lot of discussions in the particular chapter, that is gravitation, and after completing the chapter just we have moved towards the chapter 5th, work, energy and power. So dear students, we are going to discuss a lot of contents in this chapter, and there is a one video made by me. So this video has been uploaded in the particular Google Map, so where you can see, and I hope all of you have seen that video, and I hope you have already done the assignment which was associated with the video. So dear students, today we are going to describe about the important topic. Here is that is a work done when the force is not along the direction of motion. Dear students, you have seen a formula of the force, that is W equal to, आपने देखा था F क्रॉस S. ये पॉसिबल, ये W इक्वल टू F क्रॉस S कब के लिए था स्टूडेंट्स? Because we are applying the force on any body and the body gets displaced. It means the body is lying on there on the gate surface and we are applying the force, and you see the displacement in the direction of applied the force. It means जो इसमें displacement होता था वो जो force का direction होता था उसी के direction में वो body displaced करती थी जिधर से हम force लगाते थे. Okay, but in that case we are going to study about that work done when the force is not along the direction of motion. अब कहने का मतलब है कि जब हम फोर्स लगाएंगे तो वो हम एक पार्टिकुलर एंगल बना करके किसी बॉडी पे फोर्स लगाएंगे और उसमें देखेंगे कि उसमें डिस्प्लेसमेंट कैसा होता है. जैसे ये बॉडी यहाँ पे लाई कर रही है, द बॉडी इज़ लाइंग ऑन देयर एंड वी आर अप्लाइंग द फोर्स. ओके, द फोर्स डायरेक्शन इज एक्चुअल दैट. ओके, but you see that this is the initial position of the body A, and after some time the body reaches at this initial position, as you are looking there students, this reaches to this position, that is the B positions. Okay, so you are looking here that one important thing is here, that you are applying the force in this direction, but the body is sliding on this directions and reaches to the point B. So you are looking that the body, the motion is not seen in the direction of applied the force. ये फोर्स के अप्लाइड डायरेक्शन में मोशन नहीं कर रही है, ये आपको थोड़ा डिफरेंट डायरेक्शन में मोशन कर रही है और एक एंगल बना करके यहाँ पे ये थीटा डिग्री पे एंगल बना रही है. आप ये देख सकते हो. तो फोर्स का डायरेक्शन तो इधर है स्टूडेंट्स. ओके, बॉडी स्लाइड कर रही है इधर. तो हम कह रहे हैं कि वर्क डन व्हेन द फोर्स इज नॉट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मोशन. इट मीन्स जो फोर्स है उसका डायरेक्शन मोशन डायरेक्शन इज नॉट in the direction of motion. It means the body is sliding on that way, but we are applying the force on this way. So we have to illustrate there which formula will be applicable in that case. So let us describe that formula. We are going to describe that formula, which formula will be associated with that. We are going only to describe. So let us describe that formula, students. So we are going to describe the formula. Suppose the body is their position, that is A positions. Okay, and after some time body reaches this, and this is the actual P positions, and from there the body makes at 90 degree angle. Okay, this is the 90 degree. Okay, and this is the P positions, students. This is the P position, P point, and this is the P point AP. Okay, and displacement is seen in that case, that is the AB. Okay, and this is the theta. So we are applying the force at making an angle, that is theta, on any body. Then this is the direction of the force which we are applying, but displacement is in that case. So dear students, this is the triangle. Before going to describe this, first of all, all of you are familiar with the right angle triangle. So dear students, let us describe about the right angle triangle. In right angle triangle, as you are looking that in right angle triangle, that is the, this is the 90 degree, and this is the base, and this is the hypotenuse, and this is the perpendicular. So AC is a perpendicular. Okay,
राइट एंगल ट्रायंगल में AC क्या होता है? परपेंडिकुलर। यहाँ पे देखिए ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये AB क्या है आपका? AB इज़ अ बेस, AB इज़ अ बेस एंड BC इज़ अ हाइपरटेन्यूस। अब यहाँ पे देखिए ये BC क्या है? हाइपरटेन्यूस। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने देखा कि ये फिगर ऐसा बनेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो फोर्स हमारा होगा, फोर्स W इक्वल टू वर्क डन अगर हम निकालेंगे, W इक्वल टू फोर्स तो रहेगा इनटू यहाँ पे S जो होगा, S क्या होगा? यहाँ पे होगा AB, ठीक है, F क्रॉस AB, F क्रॉस AB। अब AB हम निकालेंगे, AB की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। तो AB की वैल्यू कैसे निकलेगा? इन ट्रायंगल ABP, इन ट्रायंगल APB ले सकते हैं, इन ट्रायंगल APB, ओके। कॉस थीटा इक्वल टू होता है स्टूडेंट्स, थीटा वेयर थीटा इज अ एंगल मेकिंग सब्सटेंड एंगल, देयर इज अ थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स? बेस अपॉन हाइपरटेन्यूस। बेस क्या है स्टूडेंट्स? देखिए ये AP अपॉन, ओके, AP अपॉन AB, ओके, AP अपॉन AB। तो यहाँ से AP आ जाएगा, AP इक्वल टू AB कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखिए जो आप फोर्स लगाए थे, ये डायरेक्शन की ओर आपका फोर्स होना चाहिए। इफ आर अप्लाइंग द फोर्स ऑन दैट डायरेक्शन, सो देयर मस्ट बी AP, ओके, देयर मस्ट बी AP. So what is the value of AP? AP equal to AB cos theta. So you will put there the W equal to AB cos theta. तो यहाँ से आपको पता है कि AB क्या है? AB is displacement, then AB equal to S cos, W equal to F into AB cos theta, F into S cos theta. तो यहाँ से आ गया W equal to FS cos theta। ये वैल्यू आपकी आ गई, W इक्वल टू FS कॉस थीटा। तो जब वर्क आया आपका, वर्क इक्वल टू W इक्वल टू FS कॉस थीटा। सो यू आर लुकिंग दैट हियर, दैट इज W इक्वल टू स्टूडेंट्स, W इक्वल टू FS कॉस थीटा, वेयर F इज द फोर्स एंड S कॉस थीटा। S कॉस थीटा इज टेकन एंड द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि आप जब प्रीवियस वीडियो में देखा था आपने वर्क डन वहाँ पे जो हो रहा था, वर्क डन वाज गोइंग ऑन इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड द फोर्स। अब जिधर आप फोर्स लगा रहे हो उसी डायरेक्शंस में डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, बट इन दैट केस यू आर लुकिंग दैट there is a horizontal component which is considered actual this type body is not moving, okay, body is sliding on the horizontal components. So horizontal components will be taken in terms of theta, that is a cos theta. तो F इक्वल टू S cos थीटा, क्योंकि बॉडी स्लाइड्स कर रही है ऐसे, बॉडी ऐसे नहीं जा रही है, बॉडी इज नॉट गोइंग ऑन दैट वे, बट वी आर अप्लाइंग द फोर्स। सपोज ए बॉडी इज लाइंग ऑन द सरफेस, ये बॉडी, अब इसको मुझे यहाँ इस डायरेक्शन से खींच रहे हैं फोर्स थीटा लगा के, ठीक है। तो ये बॉडी को जब हम खींचेंगे ऐसे स्टूडेंट, फोर्स लगाएंगे तो ये स्लाइड करके यहाँ पे आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आ रही है ना, ये इधर नहीं जा रही है, इट मीन्स इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ये हॉरिजॉन्टल वे में जा रही है, वर्टिकल वे में नहीं जा रही है। तो बॉडी इज गोइंग ऑन द हॉरिजॉन्टल वेज, ओके। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी टेकन इन टर्म्स ऑफ थीटा, दैट इज S cos थीटा। तो W इक्वल टू FS cos थीटा। तो यहाँ पे आपने देखा है कि जब वर्क डन व्हेन द फोर्स इज नॉट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशंस, देन इट विल डिपेंड ऑन थीटा आल्सो। So in the first conditions you have seen that when the force when the displacement was along the direction of the force, then in that case you have to take only the two types of the product, that is the force and displacement. Our total magnitude product of the force and displacement in that case, but here you have to consider a particular angle, that is theta. So theta decide करेगा कि कितना आपका मैक्सिमम एंगल होगा, कितना मिनिमम एंगल होगा, उस बेसिस पे फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना ज़्यादा होगा उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। सो लेट अस डिस्कस अबाउट दैट। अब उसको समझने के लिए आपको कॉस थीटा की कुछ पार्टिकुलर वैल्यू को जानना होगा। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ कॉस थीटा की पार्टिकुलर वैल्यू। सो लेट अस डिस्कस अबाउट दैट। जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने लिखा है कॉस थीटा, ठीक। यहाँ पे जैसे मैं कॉस थीटा यहाँ पे लिखता हूँ,
तो जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थीटा क्या है, थीटा इज़ अ एंगल, थीटा इज़ अ एंगल। अब यहाँ पे मैंने लिखा जैसे कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स 1, कॉस 0 इक्वल टू 1, कॉस 30 डिग्री इक्वल टू √3/2, कॉस 60 डिग्री इक्वल टू 1/2, कॉस 90 डिग्री स्टूडेंट्स होता है 1। ओके, इतना जानने के लिए फिर उसके बाद आप पूरे एंगल लिख लोगे, 0 डिग्री, फिर क्या आता है 30 डिग्री, फिर क्या आता है 45 स्टूडेंट्स, फिर आपका आता है 60, फिर क्या आता है 90, फिर क्या आता है स्टूडेंट्स 120, फिर क्या आता है 135 स्टूडेंट्स, फिर क्या आता है 150, फिर क्या आता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो कॉस थीटा में 0 की वैल्यू होगी, कॉस 0 की वैल्यू वही जाकर के होगी कॉस 180 की, जो कॉस 30 की वैल्यू होगी वही 150 की होगी, कॉस 45 135, कॉस 60 120, और यहाँ पे जो 90 डिग्री है बीच में कॉमन दिख रहा है आपको, ठीक है, 90 डिग्री से कॉमन यहाँ बीच में है। कॉस 90 की वैल्यू मैंने ऑलरेडी लिखा, कॉस 90 सॉरी यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, कॉस 90 इक्वल टू 0 डिग्री, कॉस 90 हेयर इज़ अ 0 डिग्री, सॉरी, कॉस 90 की वैल्यू यहाँ पे 0 डिग्री से हो रही है, ठीक है। बस केवल साइन का अंतर रहेगा स्टूडेंट्स, केवल साइन का अंतर रहेगा, जैसे कॉस 0 की वैल्यू होती है 1 तो कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे कॉस 60 की वैल्यू जो होती है वो 120 की वैल्यू होती है, तो बस केवल साइन का चेंज होता है। साइन कैसे चेंज होता है इन सब चीज़ों के बारे में आप डिटेल से पढ़ोगे, जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको डिटेल से समझाया जाएगा स्टूडेंट्स। लेकिन अगर आप इतनी पर्टिकुलर वैल्यू जानते हो तो इतने से आपका काम चल जाएगा। जैसे 180 डिग्री का मैंने बता ही दिया, कॉस 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स -1, ठीक है, कॉस 180 डिग्री -1। तो इतना आपको जानने के बाद क्या है कि आप पार्टिकुलर ये जो वैल्यू आपको लिखी गई है, क्योंकि आपको कंसीडर करना होगा W = FS cos थीटा, ओके, W = FS cos थीटा, ये आपको कंसीडर करना पड़ेगा। तो cos थीटा की वैल्यू ये आपको पता रहेगी। तो यहाँ पे थीटा क्या है, एंगल है, जितने डिग्री से हम लोग किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको जानने के बाद आपको ये एंगल को जानने के बाद अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जैसे हम किसी भी बॉडी पे, जैसे मान लो एक कार खड़ी है, ठीक है, सपोज दैट देयर इज़ ए कार, सपोज दैट देयर इज़ ए कार, ठीक है, जैसे मान लो एक कार खड़ी है और इस कार को, ये कार यहाँ पे साइड सरफेस पे खड़ी हुई है, इसकी बत्ती है, तो मान लो ये कार अगर ऐसे खड़ी हो स्टूडेंट्स, ठीक है, इफ द कार इज़ लाइंग ऑन दैट सरफेस, तो आप इस पर कितने डिग्री पे फोर्स लगा रहे हो स्टूडेंट्स, 90 डिग्री पे, यानी ऊपर आप ऐसे फोर्स लगा रहे हो, फोर्स का डायरेक्शन डाउनवर्ड्स ऐसे लगा रहे हो। तो ये क्या बताइए, कार मूव करेगी। अब आप 90 डिग्री पे लगा रहे हो तो ये तो डाउनवर्ड्स फोर्स लगा रहे हो ना, तो क्योंकि यहाँ पे कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस 90 डिग्री इक्वल टू 0। तो हमारा जो वर्क डन होगा W = FS cos थीटा है, कॉस 90 की वैल्यू 0, तो वर्क डन क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा क्योंकि आप परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर ये आपका सरफेस है, ठीक है, दिस इज द ग्राउंड सरफेस एंड यू आर अप्लाइंग द फोर्स इन बैक डायरेक्शंस बाय पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल सरफेस, इट मीन्स देयर इज नो एनी एंगल, देयर इज नो एनी एंगल मेकिंग ऑन दैट, कोई एंगल नहीं लग रहा है वहाँ पे। तो वहाँ पैरेलल, जब दो लाइन पैरेलल होती है तो उनके बीच एंगल क्या होता है, जब व्हेन टू लाइन्स आर पैरेलल देन देयर इज नो एनी एंगल बिटवीन देम, ओके। सो इन दैट केस थीटा विल बी 0 डिग्री, उस केस में थीटा क्या होगा स्टूडेंट्स 0 डिग्री, और उस केस में जो वर्क होगा वो मैक्सिमम होगा। वर्क डन मैक्सिमम कब होगा स्टूडेंट्स, वर्क डन मैक्सिमम, वर्क डन मैक्सिमम कब होगा, जब फोर्स जो फोर्स हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स और उसके बीच जो लाइन ऑफ एक्शंस के बीच जो फोर्स एंगल लगा रहे हैं हम लोग, वो एंगल थीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए 0 डिग्री, ओके। अब यहाँ पे रख के देख लीजिए, W = FS cos थीटा, FS cos थीटा, तो cos थीटा यानी cos 0, ठीक है, cos 0 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स 1, तो ये पूरा ये आपका आ जाएगा 1, और ये आपका पूरा का पूरा आ जाएगा W = FS, W = FS जो हम लोग पहले कंडीशन में पढ़ा था। ये फोर्स के फर्स्ट वीडियो में आपने देखा था इंट्रोडक्शंस कि W = F क्रॉस S होता है, वही चीज़ आ गया आपको, क्योंकि इस केस में फोर्स वर्क क्या होगा मैक्सिमम होगा, इस केस में वर्क क्या होगा
मैक्सिमम होगा व्हेन थीटा इज अ 0 डिग्री। अब ये बताइए थीटा 90 डिग्री वर्क डन मिनिमम कब होगा या वर्क डन 0 कब होगा स्टूडेंट्स? वर्क डन 0 कब होगा? जब ये परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में फोर्स लग रहा हो 90 डिग्री पे, फोर्स इज अप्लाइंग एट 90 डिग्री। जब 90 डिग्री पे फोर्स लगेगा स्टूडेंट्स तो यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा? 0। वर्क डन विल बी 0 द फोर्स। यहाँ पे देखिए 90 डिग्री पे फोर्स लग रहा है तो यहाँ पे आपका वर्क डन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब वर्क डन निगेटिव कैसे होगा? व्हेन द वर्क डन विल बी कंसीडर्ड एज निगेटिव। नेगेटिव वर्क डन कैसे होगा इसके बारे में समझते हैं। कैसे वर्क डन निगेटिव होगा? व्हेन द वर्क डन विल बी कंसीडर्ड एज नेगेटिव। वर्क डन निगेटिव कैसे होगा? जैसे मान लो हम बॉडी ऐसे पड़ी हुई है और इस बॉडी पे जो हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स की डायरेक्शन ऐसे है, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शंस में बॉडी मूव कर रही हो, ठीक है। वी आर अप्लाइंग द फोर्स ऑन एनी बॉडी and the body is moving on opposite directions. It means that theta will be 180 डिग्री। 180 डिग्री ऐसे ही तो एंगल बनता है 180 डिग्री, ठीक है। थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। तो आपको क्या बताया है यहाँ पे? cos 180 डिग्री। द वैल्यू ऑफ cos 180 डिग्री दैट इज -1। तो यू विल सब्स्टिट्यूट देयर w इक्वल टू fs cos थीटा। w इक्वल टू fs cos थीटा। सो यू विल पुट देयर fs cos 180 डिग्री और cos 180 डिग्री की -1, तो यहाँ पे आ गया -fs। w इक्वल टू -fs और ये माइनस साइंस नेगेटिव साइन ये बताता है स्टूडेंट्स कि वर्क इज गोइंग ऑन इन अपोजिट डायरेक्शंस, देयर इज ए नेगेटिव वर्क, ओके। क्योंकि हम फोर्स लगा रहे हैं डायरेक्शन, मान लो हमारा फोर्स ऐसे है और उसका डिस्प्लेसमेंट इधर डायरेक्शन में हो रहा हो, ठीक है, ये तो इन दोनों के बीच जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री का बनेगा। और 180 डिग्री में आपने देखा है cos 180 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स? -1। आपको याद रखना होगा cos 180 डिग्री की cos 180 डिग्री में वैल्यू क्या होती है? -1 cos की। इसलिए जो हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा वर्क का दैट इज w इक्वल टू -fs cos थीटा आपका आ जाएगा। w इक्वल टू -fs cos थीटा, दैट इज w इक्वल टू -fs cos थीटा, ठीक है। तो w cos 180 आपने रखा तो क्या मिला? सिंस यहाँ लिख सकते हो cos 180 डिग्री इक्वल टू -1, सो हैंस w इक्वल टू -fs मिल जाएगा आपको। यू विल गेट w इक्वल टू -fs। और ये माइनस साइंस नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि वर्क डन इज नेगेटिव। और नेगेटिव वर्क डन होने का मतलब यही है क्योंकि फोर्स जो आप डायरेक्शंस में लगा रहे हो, एंगल जितने डिग्री का बना रहे हो उस बॉडी पे वो 180 डिग्री का लगा रहे हो स्टूडेंट्स, ओके। तो आपने देखा है कि जो मैंने cos की वैल्यू रखा है तो उसमें cos की वैल्यू सबसे ज़्यादा किसकी आई स्टूडेंट्स? cos थीटा में अगर हम कंपेयर करें cos थीटा में, हाँ एक तरफ थीटा लिख लेते हैं, एक तरफ cos थीटा, ठीक है। तो थीटा cos थीटा, ठीक है। जब मैं यहाँ पे 0 लिया 0 डिग्री तो यहाँ पे क्या आया स्टूडेंट्स? 1 आया। जब मैंने 30 डिग्री लिया तो क्या आया स्टूडेंट्स? √3/2 आया। जब मैंने यहाँ पे 60 डिग्री लिया तो क्या आया? 1/2। जब मैंने यहाँ पे 90 डिग्री लिया स्टूडेंट्स तो यहाँ पे 0 आया। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है? देखो यहाँ पे cos 0 की वैल्यू 1, ठीक है, 1। और देखिए सब छोटे हैं 1 से, यहाँ पे देखो ये तो 0 ही है। cos 90 0 डिग्री, cos 30 1 √3/2, cos 60 1/2। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे 1 है, सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है? 0 है। तो इसका मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि अगर हम वर्क डन 0 निकालना चाहते हैं तो जो हमारा एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। और एंगल किनके किनके बीच बनता है स्टूडेंट्स? एंगल बनता है वो जो सरफेस जिस पे बॉडी एक्ट कर रही है और बॉडी से फोर्स का एंगल्स, फोर्स मेकिंग एन एंगल, ओके, विद द बॉडी इन द डायरेक्शंस ऑफ मोशन। जो हम डायरेक्शन ऑफ मोशंस पे एंगल बना रहे हैं वो उसी डिग्री पे एक्ट करेगा स्टूडेंट्स, ओके। डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, जब डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन ऑफ द फोर्स होगा तो डेफिनेटली वहाँ पे हम लोग रखेंगे cos 0, क्योंकि cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो ये सीधा सीधा मैक्सिमम वर्क देगा और इस केस में वर्क डन विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। वर्क डन नेगेटिव कब होगा स्टूडेंट्स? वर्क डन विल बी नेगेटिव व्हेन थीटा इज -180 डिग्री। थीटा 90 है तो डिस्प्लेसमेंट इज अ राइट एंगल्स टू द फोर्स। 90 डिग्री है तो राइट एंगल बनाएगा तो पूरा का पूरा फोर्स क्या हो जाएगा? 0। जब बॉडी मूव्स इन परपेंडिकुलर डायरेक्शंस
ऑफ द फोर्स, नो वर्क इज डन बाय द फोर्स। इसका मतलब बॉडी जब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही होती है तो देयर इज नो फोर्स, नो वर्क इज डन इन दैट केस। ओके, आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेना पड़ेगा, वर्टिकल नहीं। यू विल नॉट टेक द वर्टिकल कंपोनेंट्स। ओके, वर्टिकल लोगे तो थीटा 90 रख दोगे तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो वर्क डन इन द फॉलोइंग सिचुएशन इज जीरो बिकॉज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। जैसे आपको कोई पर्सन जा रहा है हॉरिजॉन्टल सूटकेस पकड़ के जा रहा है, तो सूटकेस को अंडर द ग्रेविटी जो एंगल बन रहा है दैट इज़ अ 90 डिग्री, तो इस केस में वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। जब पुलिस आप देखिए बहुत सारे हेड पे लेकर के खड़ा हुआ है, दिन भर खड़ा रहे, रात भर खड़ा रहे, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो वर्क डन जीरो, और जा भी रहा है तो वो जो उसका हेड से और ग्राउंड से जो एंगल बन रहा है दैट इज़ द 90 डिग्री, तो उस केस में भी वर्क डन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, जीरो। वर्क डन विल बी जीरो। जब कोई बॉडी सर्कुलर ट्रैक पे घूमती है, व्हेन ए बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर ट्रैक, जब भी कोई बॉडी सर्कुलर ट्रैक पे घूमती है तो उस पर जो टोटल वर्क डन होगा दैट विल बी जीरो। क्योंकि आपने देखा है कि जब सर्कुलर ऑर्बिट में कोई भी जैसे प्लैनेट घूमते हैं सन के चारों ओर, ठीक है, ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, इन दैट केस यू आर लुकिंग दैट जैसे ये सर्कुलर ऑर्बिट में कोई घूम रहा है तो ये टेंजेंट बनाता हुआ 90 डिग्री का एंगल बना देता है। ठीक है, जैसे ये बॉडी घूमता हुआ यहाँ आएगा तो इसका टेंजेंट यहाँ होगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे इसका डायरेक्शन, ये तो टेंजेंट जो बना रहा है 90 डिग्री का बना रहा है इन एवरी पोजीशन, एवरी सिचुएशन। सो नेट वर्क डन जो होगा स्टूडेंट्स, डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, और यहाँ पे जब कॉस 90 रखोगे तो वर्क डन क्या आ जाएगा, जीरो। ठीक है, या सर्कुलर ऑर्बिट में आप ऐसे भी देख सकते हो कि सर्कुलर ऑर्बिट में जब बॉडी घूमती है तो वो घूम करके फिर अपने इनिशियल पोजीशन से फिर फाइनल, इनिशियल पोजीशन से घूमते हुए फाइनल पे, फिर फाइनल से फिर इनिशियल पोजीशन पे आ जाती है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट तो हो ही नहीं रहा है इन दैट केस, तो वर्क डन विल बी जीरो। इट मीन्स ऑल प्लैनेट्स विच रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो वर्क डन इन दैट केस विल बी जीरो, वर्क डन विल बी कंसिडर्ड एज जीरो। अब देखिए कुलीस को बताया गया है, जब कुली बहुत सारे मटेरियल को अपने हेड पे लेके जाता है तो वो कितना 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, द पर्सन इज वॉकिंग हॉरिजॉन्टली टू द एंगल्स बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच जो एंगल बन रहा है दैट इज अ 90 डिग्री। जैसे कुली जा रहा है ऐसे, डिस्प्लेसमेंट ऐसे कर रहा है और ये फोर्स डायरेक्शन हेड से, दैट इज द एंगल दैट इज 90 डिग्री। और एंगल कितने डिग्री का बना रहा है स्टूडेंट्स, 90 डिग्री का। तो अब नेट ना आप लोग को पता है कि cos 90 क्या होता है स्टूडेंट्स, cos 90 डिग्री इक्वल टू जीरो, तो cos 90 जीरो, तो W इक्वल टू जो आपका आएगा एफ एस कॉस थीटा, जब यहाँ पुट करेंगे स्टूडेंट्स 90 cos 90 तो ये पूरा का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो, W इक्वल टू जीरो, वर्क डन विल बी जीरो। अब देखिए फिजिक्स में कैसे कैसे यहाँ पे ट्रेजेडी आ रही है, फिजिक्स में कैसे कैसे कॉन्सेप्ट आ रहे हैं कि वर्क डन जीरो ही होगा। कुली बहुत सारे मटेरियल को हेड पे ले करके जा रहा है, इन दैट केस वर्क डन विल बी जीरो। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको मैंने बता दिया बहुत सारी चीज़ें। मैंने आपको बताया था कि जब कोई पर्सन स्टेयर में चढ़ता है, ठीक है, व्हेन अ पर्सन असेंड थ्रू द स्टेयर, जब पर्सन कोई सीढ़ी पे जा रहा होता है, ठीक है, जैसे मान लो वो सीढ़ी पे जा रहा है चढ़ करके, ठीक है, एनी पर्सन विच इज स्टार्टेड जर्नी, तो यहाँ पे जैसे मान लो कोई पर्सन है ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये पर्सन मान लो कोई पर्सन है ये ऐसे ग्रेविटी के थ्रू ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो ये अब ऐसे जा रहा है तो इसका जो वेट होगा दैट इज़ mg, और इसका जो ये हाइट होगी दैट इज़ h। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ जाके यहाँ जाएगा फिर यहाँ जाएगा, ओके, तो इसका वेट जो W लग रहा है दैट इज़ mg इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, तो आपको पता है कि W इक्वल टू क्या होता है, Fs, ठीक है, F इक्वल टू क्या होता है mg इन टर्म्स ऑफ द ग्रेविटी, और s क्या है यहाँ पे h है, दैट विल बी कंसिडर्स mg h, W इक्वल टू mg h। तो वो पर्सन कितना वर्क कर रहा है दैट इज mg h। तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी, वर्क डन बाय द पर्सन दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज mg h। ओके, और लेकिन जो ग्रेविटी इस पे वर्क डन करेगी, ग्रेविटी अगेंस्ट में करेगी, ग्रेविटी दैट इज W इक्वल टू माइनस एफ एस, ठीक है, ग्रेविटी जो करेगी इसकी फोर्स, द वर्क डन बाय द ग्रेविटी दैट इज माइनस mg h, माइनस mg h आ जाएगा।
वर्क डन बाय ग्रेविटी दैट इज माइनस mgh, क्योंकि अपोजिट है और ये ऊपर जा रहा है, तो पर्सन्स वर्क कर रहा है दैट इज अगेंस्ट द ग्रेविटी mgh, एंड ग्रेविटी जो वर्क कर रही है दैट इज माइनस mgh, विच विल बी ट्रीटेड एज द नेगेटिव। आप जब मान लो किसी वस्तु को, किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर उठा रहे हो, लिफ्ट अप कर रहे हो, तो आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, दैट इज द W इक्वल टू mgh। यू विल हैव टू डू द वर्क दैट इज mgh, you have considered here, that is mgh. So students, I hope all of you are getting it very well, right? फिजिक्स में देखिए ऐसे कॉन्सेप्ट आपको मिल रहे हैं कि जैसे आपको इसको सरप्राइज करेंगे। देयर आर सो मेनी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एसोसिएटेड विद द फिजिक्स दैट वी आर अंडरस्टैंडिंग। I hope students, all of you have understood it clearly, and I think all of you are getting very well, and definitely you can do the best in the exam. The chapter is work. So we have completed one topic from that, that is work. We will discuss in next video about the energy, types of energy, energy conservations, and other things related to that. And after completing the energy, we will move towards the power, and we will discuss about the power. Okay, so we have described about the work. Students, thank you students for watching today's video.